of 80386. Okay, so this is all about 80386. You can use it as a 16-bit register. अगर आपको 16-bit का operand चाहिए, so you can directly use it over here, AX. If you want to use it as a 32-bit operand, you can use it over here by EAX. Over here, we will have two segment register. This call is now being recorded. We will have two segment register, code segment as well as text segment. ये दो segment registers है हमारे पास, and all these four we will use for data segment, DS, ES, FS and GS. These segment registers we will use for data segment. IP we will use for pointing instruction, and EIP, that is for 32-bit address. Then flags, if you are using real mode 80386, आप अगर real mode में इसको use करोगे, then we will require only 16-bit. But उससे आगे, if you are using it in protected mode or in virtual 8086 mode, then we will have some extra flags, so that we are going to discuss from there what are the flags bits available in 80386. So till this particular point, we have seen only the basic things about 80386. There are three modes in 80386. First is a real addressing mode, real mode. You can say that. Second one is a protected mode or virtual protected mode. And the third one, that is virtual 8086 mode. So real mode में वो operate कैसे करेगा? In real mode, it will work like simple 8086. सिंपल 8086 का मीनिंग क्या होगा? वहां पे एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होगा? 16-bit आप सेगमेंट रजिस्टर में से कंसीडर करोगे, देन उसमें एक जीरो ऐड करोगे, फिर उसमें ऑफसेट ऐड करोगे, and then we will calculate the 20-bit physical address. So that will remain same for 80386 as well as 80286 real mode. So when we will start 80386, whenever we will restart 80386, it will always start in real addressing mode. वो always कहाँ पे start होगा? Real addressing mode में. So that we have seen in 80386 in detail. Real addressing mode के बारे में हमने पूरा discussion कर लिया है last lecture में. Okay, so now we are going to discuss the flags which are available in 80386. So up to this particular point, ये जो bits है वो तो हमने यहाँ तक तो हमने already discuss किया हुआ है, that carry flag is there, parity flag is there, auxiliary carry flag is there, sign zero flag is there, sign flag is there, trap flag is there, interrupt flag, direction flag, overflow flag, privilege bit, input output privilege bit, it is of 2-bit, 12 and 13. Then anti-nested task, whether the task has been nested or not. So that this 2-bit has been this two flags has been introduced in 80286. Next, bit number 16 and bit number 17 that we are using for RF. RF means resume flag and VM means virtual flag. So we will discuss it in detail. So the flag register is of 32-bit over here. So 32 bits, after this 18 onwards, 18 to 31 that are reserved. So we are not using it. And over here, this bit is 1. ये bit है वो 1 है. So D5 to and D3 are D5, D3 as well as D31 to D18, D18 to D31 are reserved, or you can say that unutilized. So don't care. You can say that. This all are don't care. This 3-bit, D3, D5 and D15. While D1 is always 1. D1 क्या होना चाहिए? So यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? This should be always 1. So that has been indicated over here. And two extra flags that are added over here, that is a virtual memory, or you can say that virtual mode and resume flag. So we'll discuss it each every in detail over here. So first, virtual mode. So what this virtual mode means? So as you are already aware about that there are 3 modes, 1, 2 and 3. 3 modes in 80386. First one is real mode, second one is protected mode,
and the third one is a virtual 8086. अब ये वर्चुअल 8086 मोड में अगर हमको जाना है, रियल मोड में से प्रोटेक्टेड मोड में आप स्विच कर पाओगे, और प्रोटेक्टेड मोड में से कहाँ पे आप स्विच कर पाओगे, वर्चुअल 8086 मोड में। सो अगर आपको प्रोटेक्टेड मोड में से वर्चुअल 8086 मोड में जाना है, if you want to go to the virtual address 8086 mode, so virtual 8086 mode में अगर आपको जाना है तो क्या करना होगा, so this bit will become 1. ये bit अगर जैसे आप 1 करोगे, so if this flag is 1, then it means that you are in virtual 8086 mode. आप कौन से मोड में है, virtual 8086 mode. That is a third one. And this bit can be set. ये कहाँ से आप set कर पाओगे, this can be set only from protected mode. आप protected mode में से ही इसको set कर सकते हो. You cannot set it from real mode, or you can say that यहाँ से आपका जो real mode है उसमें से आप इसको set नहीं कर पाओगे. If you will try to set it from real mode, you will get exception. बट अगर आप प्रोटेक्टेड मोड में अभी हो तो वहां से आपको वर्चुअल मोड में जाना है, then you can switch it. So you can switch to the virtual 8086 mode from protected mode. So in this mode, if any privilege instruction is executed, अब वर्चुअल 8086 मोड में क्या होगा, अगर कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वहां पे भी एक्सेप्शन जनरेट होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, विल डिस्कस वर्चुअल 8086 मोड इन डिटेल, वो भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो अभी के लिए ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए कि वर्चुअल 8086 मोड में क्या होगा, अगर आप कोई प्रिविलेज लेवल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें एक्सेप्शन जनरेट होगा. अब ये बिट आप कैसे सेट कर पाओगे, हाउ वी विल सेट दिस पर्टिकुलर बिट. ये बिट सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सो यूजिंग आई रिटर्न इंस्ट्रक्शन और यूजिंग अ टास्क स्विचिंग ऑपरेशन you can again set this particular bit in from protected mode. तो आपको ये बिट अगर 1 करना है तो आपको either आई रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होगी, और bit can set using आई रिटर्न इंस्ट्रक्शन और एनी टास्क स्विच ऑपरेशन. एंड सेम वे अगर आप ये बिट की वैल्यू 0 है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, इफ दिस बिट इक्वल टू 0, इट मींस दैट यू आर आइदर इन रियल मोड और यू आर आइदर इन प्रोटेक्टेड मोड. सो दैट इज अबाउट द वर्चुअल मोड. अल्टीमेटली आपको सिंपली अभी क्या याद रखना है, अगर इसकी वैल्यू 1 है, इफ दिस बिट इज 1 राइट नाउ, then it means that if this bit is 1, it means that you are in virtual 8086 mode. If it is 0, it means that you are in real or protected mode. बाकी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे. Then resume flag. So again, it is related to the debug register. हमारे पास 80386 में बहुत सारे रजिस्टर्स अवेलेबल है. सो 80386 में जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमने डिस्कस किए, AX, BX, CX, देन सेगमेंट रजिस्टर्स हमने डिस्कस किए, फिर हमने फ्लैग रजिस्टर डिस्कस किया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर डिस्कस किया. इसके अलावा बहुत सारे रजिस्टर्स अवेलेबल है in 80386 that we are going to discuss. One of them is debug register. So debug register का task क्या है, for breakpoint purpose we are using it. So अगर ये resume flag की value 1 है तो उसका meaning वो क्या करेगा, it is checked at the starting of each and every instruction cycle, and if it is set, अगर ये bit है वो set हुआ है, if this resume flag is 1 and debug fault is ignored ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो क्या करेंगे हम, डिबग फॉल्ट है वो उसको हम इग्नोर करेंगे इफ दिस बिट इज 1. तो इसका मीनिंग इवन ऑफ द यू हैव मेंशन द ब्रेक पॉइंट बट यू हैव सेट दिस पर्टिकुलर बिट एज अ 1, तो वो वहां पे ब्रेक नहीं लेगा, इट विल नॉट स्टॉप. इट रिज्यूम फ्लैग आपका 1 है तो वो रिज्यूम कंटिन्यू करेगा, आपका ऑपरेशन है वो कंटिन्यू होगा, इट विल नॉट ब्रेक, योर इंस्ट्रक्शन विल बी नॉट ब्रेक. डिबग रजिस्टर. Okay, then if RF is automatically reset after the successfully execution of each and every instruction, so हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद RF की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस 0. So that is except I return and pop F instruction. ये दो इंस्ट्रक्शन है उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं करेंगे, वो रीसेट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, whatever is the data has been stored on stack, according to that it will change the bit. So that is about the resume flag. Resume flag
किसके साथ यूज होता है? सो रिज्यूम फ्लैग इज यूज विथ debug register and debug register is used for breakpoint purpose. So अगर resume flag की value 1 है, if this flag is 1, then even if we have mentioned the breakpoint and though so that a fault will be generated, but it will be not considered. So that is a if this bit equal to 1. But if this bit equal to 0, then the fault will be considered and we will break over there. So that is about the resume flag. Don't worry about it in detail. अभी उसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है. Well, as it will come, we will discuss it in detail. आगे जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको बहुत पता चल जाएगा what is the speciality of this resume flag. So till now, do you have any question? अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, we have seen the flag register. What are the flags available with 80386? 80386 में कौन से flag register available है? So do you have any question? We have seen two extra flags are there. That is a resume flag and virtual mode flag. आपको virtual 8086 मोड में आप इंटर आप 8086 वर्चुअल 8086 मोड में हो या नहीं हो वो इंडिकेट करने के लिए एक फ्लैग बिट्स यूज होता है. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग वन फ्लैग. So next we are going to discuss the special purpose registers. There are 4 set of special purpose registers that we are going to discuss. First set that is related to our first set special purpose register. There are 4 set. One set is for protected mode registers. Second one is control registers, then debug registers, and then test registers. These 4 special purpose registers are there. Protected mode registers. So we are going to discuss each and every register in detail. So अब पहले हम discuss करेंगे protected mode registers. So which are the protected mode registers? So there are 4 protected mode registers, which are known as GDTR, IDTR, LDTR, and TR. Now, what is this full form? What are the full form of these registers? And what is the size? GDTR means Global Descriptor Table Register. Don't worry about it right now. हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा. Right now, just remember the full form. GDTR means Global Descriptor Table Register. IDTR means Interrupt Descriptor Table Register. LDTR means Local Descriptor Table Register. And TR means Task Register. These are the 4 registers. Out of these 4 protected mode register, out of these all 4 protected mode registers, we will have these 2 registers which are of 48 bit. ये जो 2 रजिस्टर है कौन से 2 रजिस्टर? GDTR एंड IDTR. These are of 48 bit. ये दोनों की साइज क्या है? 48 bit. 48 bit means how many bytes? 48 bit means how many bytes? So it means that this registers GDTR and LDTR is of 6 byte, or you can say that 48 bit. उसमें क्या स्टोर होगा? What will information will be stored over here? So यहाँ पे स्टोर होगा बेस एड्रेस. GDTR में as well as IDTR, ये दोनों रजिस्टर में from 16 bit to 47 bit, what it will store? It will store the base address. And 0 to 15 bit क्या स्टोर करेंगे? So 0 to 15 bit will store the limit. अब ये क्या है? GDTR means क्या है? So हमारे पास मेमोरी में एक टेबल होगा. वो टेबल को हम बोलेंगे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल. दिस टेबल इज ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल. अब वो टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस टेबल?
तो 80386 में कोई भी एड्रेस आपको अगर लिखना है तो एड्रेस कितनी साइज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द एड्रेस इन 80386 इन प्रोटेक्टेड मोड में अगर हम एड्रेस यूज करेंगे तो एड्रेस बस की साइज क्या होगी, 32 बिट। तो ये जीडीटीआर जहां से स्टार्ट होगा, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल जहां से स्टार्ट होगा, उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यू विल गेट द बेस एड्रेस ओवर हियर। और बेस एड्रेस के बाद उसकी लिमिट क्या होगी, इसका मीनिंग क्या है, बेस एड्रेस में आप ये ऐड करोगे तो उसको आपको क्या मिलेगा, लास्ट लोकेशन कि यहां से लेके, सपोज दिस इज माय मेमोरी, सो मेमोरी में मेरे पास ये जो टेबल है वो कहां से कहां है, सो इट इज स्टोर फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। So that information you will get from here. Register global descriptor table register में से आपको क्या information मिलेगी? What you will get? You will get the base address as well as the limit of global descriptor table. Same way IDTR में से क्या मिलेगा आपको? तो जैसे हमारे पास GDT है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, वैसे एक इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल भी होगा। सो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल कहां से स्टार्ट होगा और उसकी लिमिट क्या होगी, वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, ये रजिस्टर में से। एंड सेम वे वी विल हैव अनदर वन मोर टेबल दैट इज कॉल्ड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में सिर्फ आपको 16 बिट ही चाहिए। अब वो 16 बिट ही क्यों चाहिए, दैट यू विल गेट टू नो, वो हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कहां पे है मेमोरी में, तो आपको ये रजिस्टर एक्सेस करना होगा और ये रजिस्टर का नाम है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। तो उसमें सिर्फ आपको 16 बिट ही चाहिए। इन सेम वे टास्क स्विच, एक टास्क अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट यू विल गेट फ्रॉम टास्क रजिस्टर। वी विल discuss it lots of time in consecutive lectures, so don't worry about it right now. Just remember the full form: GDTR, global descriptor table; IDTR, interrupt descriptor table, as well as the remember size, उसकी size क्या है, 48 bit, दोनों की size 48 bit है, as well as local descriptor table and task register both are of 18 bit. Next, that is a special purpose register. अब ये special purpose register है, so कितने special purpose register है, so again special purpose register में next हम discuss करेंगे control register। पहले हमने discuss किया protected mode registers, अब हम discuss करेंगे control registers। So how many control registers are there? So there are 4 control registers: CR0, CR1, CR2 and CR3। 4 control registers are there। अब ये जो 4 कंट्रोल रजिस्टर में है उसमें से हम हर एक कंट्रोल रजिस्टर को डिस्कस करेंगे। सो जो पहला जो CR0 है, इट इज सिमिलर लाइक द मशीन स्टेटस वर्ड, जो आप 80286 में आपने जो मशीन स्टेटस वर्ड स्टडी किया था, इट इज सिमिलर लाइक दैट। सो यहाँ पे ये जो PE बिट है, MP, EM, TS एंड ET एंड दिस PG, टोटल 6 बिट्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। रिमेनिंग बिट्स वी आर नॉट यूजिंग। सो पहले CR0 में हम जो ये लेस्ट सिग्निफिकेंट 5 बिट एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 31st bit that we are going to discuss over here. So PE bit, so again it is the same, ये जो हमने मशीन स्टेटस वर्ड में स्टडी किया था वैसा ही। PE बिट का मीनिंग क्या है, इट इज टू इनेबल अ प्रोटेक्शन मोड। सो अगर आपको रियल मोड में से प्रोटेक्शन मोड में स्विच होना है तो आपको क्या करना होगा, ये बिट आपको 1 सेट करना होगा। ये बिट जब आप 1 सेट करोगे तो आप स्विच हो जाओगे रियल मोड में से प्रोटेक्टेड मोड में। Okay, then second bit will indicate math coprocessor, whether the math coprocessor or floating point processor is exist or not, present or not. If it is 1, then processor is present. If it is 0, then processor is not present. No coprocessor is attached. Same way, if this third bit, that is a EM bit, it is known as emulate the floating point processor. So if EM equal to 1, and we will so if it will generate the exception for floating point instruction। जब भी floating point instruction आएगी तो ये exception generate करेगा if your EM equal to 1
If EM equal to 0, then it will not generate the exception for floating point instruction. Same way TS, that is a task switch. जब आप एक टास्क में से दूसरे टास्क में स्विच होंगे तब ये बीट की वैल्यू 1 होती है. सो सेट्स व्हेन द टास्क स्विच विथ एवरी टास्क स्विच. सो जैसे ही एक टास्क में से दूसरे टास्क में जाओगे ये टास्क बिट है आपका 1 सेट होगा. Extension bit, it will indicate whether the co-processor is 80286 or 80386. आपने 80386 प्रोसेसर के साथ जो को-प्रोसेसर अटैच किया है वो को-प्रोसेसर का मीनिंग क्या है? दूसरा प्रोसेसर. सो बोथ प्रोसेसर विल बी यूज इन शेयर्ड मोड. दोनों प्रोसेसर आप यूज कर सकते हो. सो एक प्रोसेसर जो होगा वो हमारा मेन प्रोसेसर होगा. दूसरा प्रोसेसर जो है उसको हम बोलते हैं को-प्रोसेसर. We will use it only when it require. So that is co-processor that is attached, whether it is a 80286 or 80386. उसको indicate करने के लिए यहाँ पे ET bit आपका यहाँ पे indicate करेगा. If it is 1, then it means that co-processor is 280. If it is 0, then co-processor is 380. And this last bit, ये जो bit है वो क्या indicate करेगा? ये जो PG bit है यहाँ पे. So PG bit will indicate that whether the paging is enable or not. Paging enable किया हुआ है या नहीं किया हुआ है. If PG equal to 1, it means that paging is enable. If PG is equal to 0, it means that paging is disable. अब वो enable है तो क्या होगा? Disable है तो क्या होगा? So that we are going to discuss in detail later on. But this is all about the CR0. CR0 में हमारे लिए important के लिए 6 bits है. 6 bits we have studied in CR0. These 6 bits are PE, so that is a protection enable. MP, so that is a math coprocessor present or not. EP, that is a emulate math coprocessor. It means that whether the exception is generated for floating point instruction or not. Then TS, whether the task switch has occurred or not. ET, whether the coprocessor that is connected, it is 286 or 386. And PG, whether the paging is enabled or not. Then this CR1 we are not using. ये जो control register है हमारे पास 4 control register है उसमें से ये CR1 हम use नहीं करेंगे. It is reserved. Same way CR2 and CR3 we will use in paging. So CR2 and CR3 we are using for paging mechanism. So we will discuss it at that time. Paging जब हम study करेंगे तब वो detail में study करेंगे. Then next group of special purpose register is debug register. Debug register में क्या होगा? So how many debug registers are there? So there are 8 debug registers. So there are 8 debug registers. Out of these 8, 2 are not used, or you can say that 2 are reserved. कौन से? D4 and DR5. These 2 are not used. Then what is the use of remaining registers? So DR0 to DR3, ये जो 4 registers है उसमें हम क्या स्टोर करेंगे? सो उसमें होगा एक एड्रेस. हर एक में आप स्टोर कर सकते हो, एक एड्रेस स्टोर कर सकते हो. तो इसका यूज कब करेंगे? ये जो डिबग का मीनिंग क्या है आप सबको पता है. डिबग का मीनिंग क्या है? सो जनरली हम जब भी डिबग करते हैं तो क्या करते हैं? 1 by 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सपोज हमारा प्रोग्राम हमने लिखा है. सपोज देयर इज अ प्रोग्राम that we have written, और वो प्रोग्राम में हमने यहाँ पे एक एड्रेस स्टोर किया. लेट्स दैट 356A 32 बिट का कुछ एड्रेस हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है. पूरा 32 बिट का एड्रेस आप कोई भी एज्यूम कर लो. यहाँ पे एक 32 बिट का एड्रेस है. तो आपका प्रोसेसर जब एड्रेस कैलकुलेशन कर रहा होगा, व्हेन योर प्रोसेसर इज कैलकुलेटिंग द एड्रेस and the final address will be generated. पूरा जो final 32 bit का एड्रेस जनरेट होगा आपकी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, the final 32 bit address which has been generated for accessing your memory, वो एड्रेस को इसके साथ कंपेयर करेंगे. If that is match, तो इसका मीनिंग यहाँ पे हमको एक ब्रेक लेना है. यहाँ तक ही आपको एग्जीक्यूट करना है. We have to take break over here. So that is this linear breakpoint address register. That is the meaning of over here. The breakpoint address specified are 32-bit linear address. Linear address का meaning final address, physical address. आपका जो physical address होगा
वो इसके साथ कंपेयर होगा, और अगर मैच होगा तो इसका मीनिंग यहाँ पे हमको एक ब्रेक लेना है, एक स्टॉप करना है। डिबगिंग का मीनिंग क्या है? हम वहां तक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। आपकी इंस्ट्रक्शन कहां तक एग्जीक्यूट होगी? ये पर्टिकुलर पॉइंट तक, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी। उससे आगे एग्जीक्यूट कब होगी? जब आप रिज्यूम करोगे तब। So that is while debugging, we are using this. So while debugging, Intel this 80386 processor compares the linear breakpoint address in DR0 to DR3. So ये तीनों रजिस्टर में से कंपेयर करेगा। So इसका मीनिंग आप एट अ टाइम 4 ब्रेक पॉइंट रख सकते हो। तो कोई भी अगर ब्रेक पॉइंट मैच होगा, आइदर इट विल मैच विद फर्स्ट, और इट विल बी मैच विद द सेकंड, और इट विल बी मैच विद द थर्ड। कोई भी एक के साथ अगर मैच होगा तो वहां पे प्रोग्राम आपका स्टॉप होगा। स्टॉप करके वो आपको क्या देगा? अभी आपके प्रोग्राम जो अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है उसका स्टेटस क्या है, उसमें फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या है, आपके जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। डिबगिंग पर्पस के लिए जनरली हम इसको यूज करते हैं, डिबग रजिस्टर्स। सो आउट ऑफ दिस देयर हाउ मेनी डिबग रजिस्टर्स आर देयर? 8। उसमें से 2 हम यूज नहीं कर रहे, 2 आर रिजर्व्ड। 4 we are using to store a linear breakpoint, and remaining 2 we are using to store the status or to get the status। आपके ब्रेक पॉइंट का स्टेटस क्या है वो जानने के लिए और ब्रेक पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग दिस। So DR6 and DR7 we are using for status purpose as well as for control purpose. Look, don't worry about in much detail about each and every register, because if we are going to discuss it in very much depth, then we are not able to complete our syllabus. So few of the things we have to just get the knowledge about it, basic knowledge ही हमको लेना है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है। Because if we are going to study each and every things in very much detail, then we are not able to complete our syllabus in time. So that's we have to consider only its overview. And same way, this is last special purpose register is test register. So we are having 2 test register. So 2 test registers are there that we can which we are using for paging. पेजिंग में इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पेज केसिंग के लिए जनरली हम इसको यूज करते हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के साथ इसको जनरली यूज करते हैं हम। सो दैट इज TR6 is used for command test register and TR7 is used for data register, which contains the data for translation look aside buffer test. So don't worry about it right now, we will discuss it in detail। TR6 and TR7 detail में discuss करेंगे, but this is for your information that how many special purpose registers are there। So now I hope all of you are clear with the register organization। अब आपको पता चल गया होगा कि 80386 में कितने सारे रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। सो दैट नाउ लेट्स कंक्लूड द रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। These are the general purpose registers which are of 32 bit। These are the segment registers, 6 segment registers are there। Then instruction pointer and flag register, EIPN flags। Then we have seen this flag register is also of 32 bit। Then we have seen the special purpose registers। Special purpose register में भी 4 category है। पहली category protected mode registers। So 4 protected mode registers, GDTR, IDTR, LDTR and TR। Then control registers, so 4 control registers, so CR0, CR1, CR2 and CR3। Then debug registers, so 8 debug registers, DR0 to DR7 that we are using for debugging purpose। And the last set of register is test register। So test register हम use करेंगे paging mechanism के साथ। So this is all about the registers which we are having in 80386। So till that particular point, do you have any question? रजिस्टर्स कितने हैं, कैसे हम इसको यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट इन मच डिटेल। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू इसका याद रखना है, एज वेल एज यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज द साइज ऑफ ईच एंड एवरी रजिस्टर। हर एक रजिस्टर की साइज क्या है वो भी आपको याद रखना है। बाकी उसका फंक्शन क्या है, उसका यूज कैसे होगा, दैट वी विल डिस्कस थ्रू आउट द लेक्चर। लेक्चर्स वाई लेक्चर हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, सो यू विल गेट बेटर आइडिया। Size of test register, size of test register is I think 8 bit। 8 bit का है आपका टेस्ट रजिस्टर है, उसकी साइज 8 बिट की है।
CR0. Yes, size of test register is 16 bit or 8 bit. I don't remember it right now. I will check it and I will inform you. What is the size of test register? I need to check it. But that will be used in this paging mechanism so that size will be, it might be 16 bit. But I need to check it and I will inform you later on. What will be the size of the test register? Okay, so next we are going to discuss the protected mode of 80386. 80386 protected mode के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. So protected mode में क्या होगा? What will be there in protected mode? So as all of you are aware about, there are three mode. Real mode, तो जैसे ही आप प्रोसेसर स्टार्ट करोगे तो हम कौन से मोड में होंगे? रियल मोड में. अब रियल मोड में से प्रोटेक्टेड मोड में स्विच कैसे करेंगे हम? How to switch from real mode to protected mode? In 80386 में आपको क्या करना होगा? नहीं, नो राज, योर आंसर इज रॉन्ग. फ्लैग बिट सेट करेंगे? नो. कौन सा बिट सेट करना होगा? पी बिट. यस, CR0 का पी बिट. कौन से रजिस्टर का? आपको CR0, कंट्रोल रजिस्टर 0. ये जो कंट्रोल रजिस्टर है उसमें जो पी बिट है वो आपको 1 करना होगा. कंट्रोल रजिस्टर में आपको डेटा राइट करना होगा और वो कंट्रोल रजिस्टर में आपको पी बिट क्या करना होगा? 1 करना होगा. ओके, टेस्ट रजिस्टर size of test register is 32 bit. I have checked it and this is for your information that size of test register for paging mechanism that we are using, this test register, size of this test register is of 32 bit. ये test register की size क्या होगी? 32 bit. What will be the size of this test register? So 32 bit means यहाँ पे 0, so 0 to 31. So 0 to 31, that will be the size of your test register, 32 bit. Size of test register. Okay. So how we will switch from protected mode, real mode में से protected mode में कैसे जाएंगे? So we have to specify CR0. CR0 का ये जो particular bit है उसको आपको 1 करना होगा. So we will switch from real mode to the protected mode. तो protected mode में change क्या होगा? So all the capabilities of 80386 that is available in actually protected mode. So this is our main important mode. And all the software instructions which and of all the program which are written for 80286 that are also supported in 80386. So under the control of memory management and protection availability, you can execute all the 80286 program as well as 80386 program, 8086 program also. And यहाँ पे कुछ addressing modes and everything that we are going to discuss in detail. Okay. अब protected mode में हम कैसे addressing कैसे करेंगे? How we will calculate the address? So this is a most important point. 80286 and 386 दोनों में address calculation कैसे होगा? वो अब हम numeric example के साथ study करेंगे. Just number of bits will be changed from 286 to the 386. उसमें सिर्फ size का change होगा. So पहले हम अभी 386 के बारे में discuss कर रहे हैं. So in this particular mode, now the segment register, कितने segment register है हमारे पास? 6 segment registers are there. So segment registers now will be used as a selector. अब जो segment registers हम हमारे पास है वो अब कैसे यूज करेंगे हम? So that will be used as a selector. Selector का मीनिंग क्या होगा? So you will get the index and that index will point to the descriptor and the descriptor will contain the information about the segment limit, segment size and segment access right and everything. So segment register will be used as a selector and that selector will point to, that selector is known as an index to the descriptor and that descriptor will contain all the information
लाइक सेगमेंट बेस एड्रेस, सेगमेंट लिमिट, सेगमेंट का राइट क्या है, एवरीथिंग विल बी देयर। और उसके बाद सेगमेंट का बेस एड्रेस आपको मिलेगा, उसके बाद वो बेस एड्रेस में हम ऑफसेट एड्रेस ऐड करेंगे, एंड देन वी विल कॉल द फिजिकल एड्रेस, फिर आपको मिलेगा लीनियर एड्रेस, एंड दिस लीनियर एड्रेस इज योर फिजिकल एड्रेस। अभी अगर आप पेजिंग मैकेनिज्म यूज नहीं करोगे तो ये लीनियर एड्रेस जो जनरेट होगा वही आपका फिजिकल एड्रेस होगा। बट इफ यू आर यूजिंग अ पेजिंग मैकेनिज्म, if paging is implemented, then again this linear address will be converted. We will have to again compute something, we have to add something, and then it will be considered as a physical address. So the paging unit is a memory management unit enable only in protected mode. ये पेजिंग कहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो? सो प्रोटेक्टेड मोड में आप पेजिंग इनेबल भी कर सकते हो, पेजिंग डिसेबल करेंगे। विदाउट पेजिंग मीन्स पेजिंग इज डिसेबल। सो द पेजिंग मैकेनिज्म अलाउड handling of large segment of memory in terms of 4 KB bytes. So we will discuss it later on. अभी के लिए ये कैसे पूरा सिनारियो मैंने आपके सामने रखा है। दिस इज अ कंप्लीट सिनारियो हाउ वी विल कैलकुलेट द एड्रेस। सो यहाँ पे है आपके सामने डीएस। सो डीएस में अभी है, कंसीडर करो 0008। तो वो 0008 वो डायरेक्ट सेगमेंट एड्रेस नहीं होगा। सो 0008 विल बी नॉट योर सेगमेंट एड्रेस, बट 0008 वो क्या होगा? एक इंडेक्स होगा। इंडेक्स का आप इसको इंडेक्स बोलो या पॉइंटर बोलो, यू कैन कॉल इट एज अ इंडेक्स और पॉइंटर। सो जो सेगमेंट रजिस्टर है उसमें से हम सिर्फ कितने बिट्स यूज करेंगे? सो आपका सेगमेंट रजिस्टर है अगर वो 16 बिट का है, सो 16 बिट में से 3 बिट हम यूज नहीं करेंगे, ओनली 12 बिट वी आर गोइंग टू यूज। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज ओवर हियर। सो यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा वो 12 बिट हम यूज करेंगे सिर्फ पॉइंटिंग के लिए। तो वो पॉइंट किसको करेगा? सो ये 12 बिट आपका एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, और वो पॉइंट मेमोरी लोकेशन किसका होगा? एक टेबल की एक एंट्री का। कौन सी टेबल की एंट्री का? सो वो टेबल में क्या होगा? डिस्क्रिप्टर टेबल की कोई एक एंट्री को पॉइंट कर रहा होगा। सो डिस्क्रिप्टर टेबल इज व्हाट? डिस्क्रिप्टर टेबल इज नथिंग बट इट कंटेन्स ऑल द डिस्क्रिप्टर। जितने भी डिस्क्रिप्टर हमारे पास अवेलेबल होंगे वो सभी यहाँ पे ये टेबल में स्टोर होंगे। एक डिस्क्रिप्टर की साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ वन डिस्क्रिप्टर? दैट इज 8 बाइट। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सो ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर है। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वन डिस्क्रिप्टर, वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो टेबल में क्या होगा? सो द टेबल विल कंटेन सच मल्टीपल डिस्क्रिप्टर। ये है वो एक डिस्क्रिप्टर है आपका, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्टर का एक टेबल बना होगा। तो कौन सा डिस्क्रिप्टर आपको एक्सेस करना है, दैट इंफॉर्मेशन, कौन सा डिस्क्रिप्टर? सो पहला डिस्क्रिप्टर तो यहाँ पे 8 है, तो इसका मीनिंग ये टेबल में से हम टेबल, ये 8 इंडेक्स वैल्यू है, तो ये 8 इंडेक्स 8 डिस्क्रिप्टर वी विल एक्सेस फ्रॉम दिस टेबल। ओके, उसमें से आपको क्या मिलेगा? ये डिस्क्रिप्टर में से आपको क्या मिलेगा? सो डिस्क्रिप्टर में से आपको मिलेगा बेस एड्रेस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें से एक इंफॉर्मेशन क्या होगी? बेस एड्रेस। सो वो बेस एड्रेस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और ऑफसेट एड्रेस जो हमने मेंशन किया होगा कहीं पे कोई रजिस्टर में या कोई मेमोरी लोकेशन में से, वो ऑफसेट एड्रेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड देन इट विल कैलकुलेट योर टोटल फिजिकल एड्रेस। फिर आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, और वो फिजिकल एड्रेस पे से हम डेटा रीड या राइट करेंगे। I have considered over here DS, so you can consider DS, you can consider ES, CS, GS, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो डेटा सेगमेंट के लिए आप कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हो, सो दैट वी नीड टू स्पेसिफाई इन प्रोग्राम। अब ये जो डिस्क्रिप्टर टेबल है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा? सो डिस्क्रिप्टर टेबल विल बी अगेन स्टोर इन मेमोरी, तो वो भी आपकी कोई मेमोरी में ही स्टोर हुआ होगा। तो अब नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, अब मैं वापस पहले से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स अवेलेबल है, वी आर हैविंग अ सेगमेंट रजिस्टर। सो सेगमेंट रजिस्टर में से आपको मिलेगा एक
सेगमेंट रजिस्टर में से आपको क्या मिलेगा? सिलेक्टर, एंड वी आर हैविंग GDTR. GDTR किसको पॉइंट करेगा? ये टेबल को. तो GDTR में से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? कि ये टेबल कहां पे है. What is the location of this table? That information you will get from this GDTR. So GDTR में से आपको टेबल का लोकेशन मिलेगा. So अभी आप एज्यूम करो कि टेबल GDTR में ये 0000 है, तो आपको ये टेबल मिलेगा 000 मेमोरी लोकेशन पे से. तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने ये पूरा टेबल पहले यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है. दिस इज अ टेबल, डिस्क्रिप्टर टेबल. अब ये डिस्क्रिप्टर टेबल की इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम कौन सा रजिस्टर एक्सेस करेंगे? GDTR. सो GDTR में से आपको मिलेगा टेबल का लोकेशन, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का लोकेशन. अब वो टेबल में से कौन सी एंट्री हमको एक्सेस करनी होगी? सो वो आपको मिलेगा इंडेक्स. तो इंडेक्स कहां से मिलेगा? सेगमेंट रजिस्टर में से. सो फ्रॉम सेगमेंट रजिस्टर वी विल गेट द इंडेक्स. और वो इंडेक्स पे जाके, और वो इंडेक्स पे से आपको क्या मिलेगा? एक पूरा डिस्क्रिप्टर. और वो डिस्क्रिप्टर का मीनिंग क्या है? उसमें क्या क्या होगा? उसमें आपके पास सब कुछ होगा कि आपका सेगमेंट कहां से स्टार्ट होगा, उसकी लिमिट क्या होगी, उसमें प्रिविलेज लेवल क्या है. सो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, डिस्क्रिप्टर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो वो पूरा यहाँ पे स्टोर होगा. सो उसमें से एक फील्ड है वो बेस एड्रेस है, सेगमेंट का बेस एड्रेस. सो वो आपको यहाँ से मिलेगा, और उसके साथ आप ये ऑफसेट एड्रेस ऐड करोगे, और फिर आपका एड्रेस मिलेगा. टोटल 32 बिट का एड्रेस आपको जनरेट होकर मिलेगा. तो दैट इज then for that particular location we are going to access. So this is the same thing I have explained over here. आपका ऑफसेट एड्रेस है वो 16 बिट का भी आप ऐड कर सकते हो या 32 बिट का भी ऐड कर सकते हो. एंड सेम वे सिलेक्टर है वो 31 बिट का. So that is depends on whether you are so that is generalized. This is generalized for 80286 and 80386. 286 में क्या होगा? आपका ऑफसेट एड्रेस कितना होगा? 16 बिट का, और उसमें सिलेक्टर भी क्या होगा? 16 बिट का. सो दैट इज जनरलाइज्ड फॉर 80286 एंड 386. सो उसमें भी हम वैसे ही एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे. सो यहाँ से आपको बेस एड्रेस मिलेगा, एंड देन फ्रॉम दैट बेस एड्रेस विल बी एडेड विद ऑफसेट एड्रेस. सो यहाँ पे सेगमेंट की साइज क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द साइज ऑफ सेगमेंट? सो सेगमेंट कैन बी ऑफ 1 MB to 4 GB. अब वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड के सेगमेंट की साइज क्या हो सकती है. बट यहाँ पे अंडरस्टैंड द क्लियरली कीप दिस पॉइंट इन माइंड. ये पहले आप याद रख लो कि यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर कैसे यूज होता है. सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेगमेंट रजिस्टर. सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पे कैसे यूज होता है? सो सेगमेंट्स आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली. यहाँ पे सेगमेंट डिफरेंटली इंटरप्रेट होता है in protected mode as compared to the real mode. The segment register contains the selector that selects the descriptor from the descriptor table. Descriptor table में से आपको वो select करके देगा. And the descriptor will contain all the information about base, limit, length, access right, all the things. यस, बाय डिफॉल्ट वो कौन सा टेबल यूज होगा वो भी हम सिलेक्टर में से आपको पता चलेगा. लुक, ओके, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ओवर हियर. लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज अ सिलेक्टर. लुक एट दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टर. जो हम सिलेक्टर यूज करने वाले हैं उसमें यहाँ पे होगा पहले 2 बिट है 0 and 1. द फर्स्ट 2 बिट दैट विल इंडिकेट द लेवल ऑफ प्रिविलेज. तो आप कौन से लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हो? 00 is having the highest privilege level and 11 is having the lowest privilege level. फिर आएगा TI bit, और यू कैन से दैट टाइप इंडिकेटर. तो अगर टाइप इंडिकेटर 0 है तो वो डिफॉल्ट इंडिकेट करेगा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल को. अगर टाइप बिट की वैल्यू 1 है तो वो इंडिकेट करेगा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को. So Raj has asked me the question that by default global descriptor table is used. By default global table ही access होता है? नहीं, by default. So that we are mentioning in CS. तो अब आपको पता चल गया होगा कि CS है, or you can say that any segment register. So any segment register is having of 16 bit. तो वो 16 bit में से पहले 2 बिट है वो इंडिकेट करेंगे आपके प्रोटेक्शन लेवल.
और प्रिविलेज लेवल। फिर ये जो सेकंड बिट है वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो इंडेक्स है वो इंडेक्स किसके लिए हम कंसीडर करेंगे, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल कंसीडर द इंडेक्स। सो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये इंडेक्स किसके लिए होगी, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये इंडेक्स किसके लिए होगी, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो first understand this basic thing, then we are going to discuss this descriptor table. Descriptor particular आपका descriptor का format क्या है, what will be the size of descriptor, how we will calculate everything. This is the most important topic. Descriptor कैसे आप access करोगे, उसमें information क्या होगी, वो बहुत important topic है. So make sure that you will not miss any of the next lectures because these points are very important. So is it clear right now, first of all, today whatever we have discussed, what we have discussed, segment register यहाँ पे कैसे use होगा? First of all, is it clear? Reply me in chat. Segment register यहाँ